startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there. What do you feel as an advantage that, let's say, your 3 children? डिप्रेशन से बेहतर कोई चीज नहीं सीखने के लिए, बिकॉज सैडनेस तुम्हें सिखाती है ना. हम लोग अपने आप को अभी इस वक्त कौन सा आपको फर्स्ट मोवर एडवांटेज दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? आपकी आइज में आजकल क्या दिख रहा है? तुम्हारे मुसलमानों ने सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं करा है लेटली. इनिशियली थे जब अकल थी, साइंस फाउंडेशन वही थी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट. मेरा नाम है साद अल्लाह वाला और आज हम लोग एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं. एक साहब के साथ जो मैं तो बचपन से इनको देखते हुए आ रहा हूँ और हमारे अब्बू के कज़न भी हैं, उनके दोस्त भी हैं एंड अब मेरे भी दोस्त हैं. मेरे भी एक अंकल हैं. अ वेरी जॉली, अ वेरी हैप्पी एंड Alhamdulillah. And a very learned man with a lot of experiences. So today we have Musa Bhai with us, Musa Ilyas, who is now retired. So that's a very good stage to catch someone at because they have so much experience to share about. And the perfect age to hire that guy as an advisor or as a consultant. क्योंकि जी सब कुछ तो कर चुके हैं, हर एक से दोस्ती कर चुके हैं वो, और अब वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. तो उन लोगों के साथ बैठना, उनके साथ चाय पीना, उनके साथ अपने एक्चुअली आइडिया शेयर करना, गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ग्रो. Thank you so much for giving us time, Musa bhai, today. No, absolutely, Saad. The honor is absolutely mine. I am so very honored to be here. And after this long day. Wonderful day. The long day was amazing because I got to see that incredible school that you guys are running. I mean, that is a game changer for the planet. We'll talk about that later. But even to be here and to watch kiddos now with these podcasts and, opening their heads and asking questions and opening minds. It's a new ball game altogether. Discussions are happening, young people are... The knowledge is no longer restricted to a handful of people because of technology and people who are using it smartly. There's access to everyone. So I think it's very exciting times. I'm just excited to be alive today. Allah ka bahut ehsan hai ki ab to I think things are happening and people like you, like everyone is making changes are happening, and I think these are the things which podcast, adding information, meeting different kinds of people, getting more exposure, less judgment. Yeah, exactly. So it's a different ball game. Pakistan is changing and there's a lot of people changing. And मैं अभी कुरंगी के बच्चों को मैं मिल के आया हूँ जो कि अमेरिकन स्कूल के बच्चों को बेच के खा जाएं. They're amazing. They are the next. Not only with these guys, these kiddos will start startups, dude. I'm telling you, the new generation. The Bill Gates, the new Elon Musks. They're amazing. Little 8, 9, 10-year-olds with the access they have because, in their mobile phones, they've got artificial intelligence and you've taught them how to use it. So there's going to be a drastic change, inshallah. Let's see what. Right now, today I've just come, so I'm very excited. Today, but yes. Let's go on. So it's a very, thank you for sharing all of that. And not just now, we're recording 3-4 different videos and hours of recording of Musa bhai already. So you already gotten so much out of it. But now I want to learn about Musa bhai. Musa bhai has indeed. Musa bhai has come from a very learned family. He has done so much. मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरा तो मैं करने जा रहा था. हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ ना, आपको तो पता ही नहीं है तो आप क्या सुनाएंगे. हाँ, तो मैं ही बता भाई. तो एक तो so old man, yes, 54, lucky enough to be blessed to be born in a family which is very blessed. So privileged household, went to the American school at a very young age, since when I was 4. जब मेरा बल्कि दाखिला हुआ था तो
came from a normal Urdu speaking household. So I remember my nursery teacher then I sent my kids there too. So मेरी nursery teacher was my children's nursery teacher. एक तो उसका भी सुभान अल्लाह मज़ा है, Miss Wasima Hussain. My nursery teacher was my eldest son's nursery teacher and my youngest daughter's nursery teacher. So of course there's a whole, we love her to death. She's big. They become family, as will happen over here. So anyways, I was in a privileged school, met incredible amounts of people, very comfortable. So I've been very lucky and blessed. Luck changes, which is a bigger blessing. Because when luck changes and you have some difficulties in life, so that's when you really learn everything about life, about people, about difficulties. When I was very comfortable money-wise and what-wise and things were really rocking, I was also rocking, I was 150 pounds heavier. So, I know. I mean, you've I've lost some weight as well. I've lost some weight as well. थोड़ा सा ही ज़्यादा नहीं? I lost some weight as well. तो वो सब होता है. अब ये पाकिस्तान की डंडा लगा हुआ है, वो तो डंडा helps. It doesn't help जब कोई और मार रहा होता है, तो किसी को डंडा मारना नहीं चाहिए, वो रोक. सुभान अल्लाह, यहाँ पे आजकल की जनरेशन अब वो भी है ना, जो आंख झुका के एहतराम बहुत अच्छी चीज़ है, मगर गलत गलत है, सही सही है, उसका डिफरेंशिएट करेक्टली करना और to have the courage to speak the truth, I think is something which is what this generation is, which is what American school teaches. It teaches you to speak your mind, to be free, to not conform. I mean, I don't want to sound fundo, but that is what Islam is too. And I believe that is what the schools and like the Korangi campus and these places are doing. So it's exciting. Now at my stage, थोड़े से struggles हैं in life, जो हर किसी के साथ होते हैं. What's fun is to see, अरे मैं क्या complain करूँ, तो if you count your blessings, आदमी थक जाता है. And this I've learned, सेठ सबसे कम blessings काउंट करते हैं, और जो मुश्किल में, जो असल मुश्किलों में लोग होते हैं, सुभान अल्लाह, उनसे ज़्यादा सुकून में वो होते हैं. पता नहीं कैसे एक कमरे के घर में 11 लोग रहने वाले खुश हैं, और अंबानी 18 अरब वाले झगड़े हो रहे हैं, फड्डे हो रहे हैं. तो पैसा तो क्लियरली इज नॉट द आंसर. सो स्टिल ट्राइंग, स्टिल सर्चिंग फॉर द आंसर. फॉलो करते रहेंगे रेहान को, इंशाल्लाह मिल जाएगा. नहीं, ऊपर वाले को फॉलो करना है असल तो. हाँ, वो रेहान भी ऊपर वाले को फॉलो कर रहा है, उसको पता ही नहीं है. हाँ, उसको पता नहीं है कि वो कर रहा है, मगर कर रहा है. Alhamdulillah. So you did your schooling from American school. Where did you go to university? So How did that happen? How did so I at 18, typical American school वो जो system होता है, I graduated. I went to this actually Catholic university called Loyola Marymount. It's in Los Angeles. And so the reason I went is not because it was a Catholic university. I went for a very not that any honorable reason. It's because my friend was going there, and he had a cousin there, so it would be just convenient, like we would know. And he was also my roommate, so I went with him. He was my roommate, and in fact, वो अभी तक मेरा जिगरी है. असद प्रेम जी, he's a very old friend. मेरा जान का टुकड़ा, of course. Again, a wonderful human being. So yeah, so that was, I was again blessed to. I've been blessed with having good people in my life and good-hearted people. So that is, I mean, like your family and so many other people. There are more good people in the world than there are bad. So, and that's a given, right? 100%. And the issues are, वो issue सिर्फ selfishness में आ जाता है. Selfish and ego. These are the two things you have to juggle and figure out what the right thing is. So, I'm still struggling with it too. But let's see, we'll figure it out. I've discovered if you are kind, decent-hearted, honest, I mean, that's the most important thing. बाकी सब तो हो ही जाता है. वो हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि चलो कुछ जगहों पे ऑनेस्टी, फेयरनेस, ये सब चीज़ें छोड़ दो, जगह अपना फ़ायदा हो जाए. आई हैव अ फीलिंग कि ये एक्सक्यूजेस टेम्परेरीली लगता भी है. पाकिस्तान का भी अगर आप देखें कि वो टेम्परेरी सोल्यूशंस, वो टेप लगाने वाले, दे डोंट वर्क. You need to have, the foundation has to be right. I was very blessed. Any decency that I have or my family or most of them have is because, I mean, my mother was this incredible. Everyone's mother is the best mom on earth. 100%. As was mine for me. Honest, kind-hearted lady, जो उन्होंने एक बेहतरीन चीज़ सिखा दी थी. मुझे पता नहीं वो कौन सी सूरत है, क्या है, मगर उसका लुब्बे लुबाब ये था कि मियाँ, speak the truth even if it's against your own family. And be fair and just.
my mother was my buddy. She had a strained marriage, so as with any strained marriages, and since I'm the only boy, moms and sons become buddies. It's a very typical situation if you look at anything. So, and I spent, I would say, 6 hours a day. So I was her buddy, she was my buddy. I'm generally also very friendly, and थोड़ी बोलने की बीमारी भी है मुझे. तो वो भी फारिग थी, तो वो सुन लेती थी. हाँ, मैं थोड़ा सा बोलता. My mother used to call me. So I grew up, and this has become so true. मेरे से बोलता था कि हाँ माँ मैं सेठ हूँ, ये चाहिए वो चाहिए. तो my mother and उनका लकब भी यही था मेरे लिए, बंगी सेठ. Or my kids know me as that. It's a thing I'm totally comfortable about because literally. यहाँ पे नाम चेंज कर दो. हाँ, मुसैला बंगी सेठ डाल दो. Actually, oh, dude, I have no issues because I'm proud of it. Alhamdulillah. BT, नहीं BS, नहीं BS. BS. Yeah, so believe me, that told I am also BS. Anybody who knows me, they'll tell you Musa bhai to ही BS. 100%. मैंने कुछ नहीं. Yeah. So yeah. So that was uni. Dad had a heart attack, and again, another thing as well, full, Pakistan mein, multiple marriages, horrible. My dad, when he also has had 2 wives. So wo bhi, son, I want to protect my, so he bought a house right behind our house. So my mother was very upset. हमारे घर से खाना पक के वहाँ जा रहा था, तो मैं was like, oh नहीं, मैं आऊँगा अपने माँ को protect करने. ये भी हुआ था, and उनको heart attack भी हो गया था, तो family ने भी बोला, अबे दुकान पे आना क्या, वहाँ बैठ के अमेरिका में, like all of that. So I got sold into that. Don't regret it for a second because I got to spend more time with my mom. So came back to Karachi, and even father का alhamdulillah mashallah all these issues got resolved. उन बेचारों ने वो बेचारी second वाली को तलाक भी दी थी. बच्चे कोई नहीं, no brothers and sisters besides the 2 wonderful sisters that Allah has blessed me with, older. But तो वो फिर उसके बाद I went to this place. उस ज़माने में, and this is about 1989, there was a house in Defense and Greenwich Institute खुला था, जो अभी भी अब now has become a big place. उस ज़माने में गोरा आदमी था वहाँ पे, Michael Gledhill. He was the one running it. So that's where I started going. उसके पहले there was going there for what? My bachelor's. कोई कराची में था. Actually अमेरिका पूरा नहीं किया था बैचलर. अरे अमेरिका तो 1 साल छोड़कर आ गए ना, हार्ट अटैक हो गया, कराची आ गए. 1 साल में हो गया ये. 88 I left. 89 September summer, I'm not sure what year. 89 I came back. I was here. Then me and my friend, we applied for IBA. We both gave the exam, which was like easy. Got to the interview. So वो डॉक्टर साहब का मैं नाम भूल गया, डॉक्टर अब्दुल समथिंग, आई डोंट नो. Anyway, some gentleman, he had somewhat of an attitude. Very nice people. So both of us, we got to the interview, and both of us, we didn't make it for the interview. Interview में हमें गड्ढा खा गए. I left for a place. I was in the American system. I wanted a Gora system. तो उस ज़माने में लाहौर में एक इंस्टीट्यूट थी called, I don't know why they named this, Park Ames, Park American Institute of Management Sciences. So I moved to Lahore. I got in there. I moved there. I had some family there, but didn't live with them. I was staying at the Gymkhana. 1-1.5 महीने वहाँ रहा. Amazing experience. 2-3. I think I was there for a quarter. And then this Greenwich opened up, and my friend in Karachi who had not gone abroad, he called me. अबे तू वहाँ क्या कर रहा है? बोर हो गया है कराची में, आ जा बहुत मजा. He's typical. वो जो नहीं होता when whatever you're doing, so you sell it to everyone else, so you get more companies सब साथ फंसे. So I have one of those amazing friends. He did that. God bless him, because it was an amazing thing for me. So, and plus living in Lahore wasn't easy away from family. So I moved back to Karachi, went to this Greenwich. That's when it was in a home. Best part of my life, made lots of different new friends, new people. And then dad, heart attack, Taya, business family, typical, kya time waste kar rahe ho, pad leke, dukaan chalani hai, like all that. So yeah, got sucked into that. My mother hated it, but I was like, nahi, theek hai, maza aayega. Being a 20-year-old going to office, suit pehen ke, you feel ego boosting, to maza aata hai. तो बस वहाँ में फंस गया. तो I've been working since 1991. अच्छा, आप लोग बेचते क्या थे, बनाते क्या थे? आइटम्स बहुत सारे बनाते थे, मगर असल तो बस आदमियों को बनाते थे. वही चीज जो पूरी सामान क्या बेचते थे, इस्तेमाल होते थे, बंदे तो इस्तेमाल experience. Okay. So let's say the line. So we've done what is my experience, what I've been exposed to: chemical indenting for Boehringer Ingelheim,
अगेन इट वाज दवाई वाले, हम कहलाते हैं दवाई वाले। मैं दिल्ली पंजाबी सौदागरान की कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे सब वाले होते हैं, एंड हम वाले हैं दवाई वाले। सो हमारा जो जिस उस ज़माने में व्हाट आई फोकस्ड ऑन वाज बोरिंगर इंगलाइन की हम लोग एजेंट से। सो आई फर्स्ट डिड शागिर्दी बोरिंगर इंगलाइन। इट्स अ जर्मन कंपनी। मेकिंग जोक ऑफ अ नेम। नहीं, ये सब पुरानी, ये पुराने तुम्हारे अब्बा की भी बताई से भी पहले की पुरानी कंपनी है। उस ज़माने में जर्मनी वाज डूड आफ्टर द वॉर, Germany was a rock star in industrial revolution. They were fantastic. So even chemical industry, Henkel, you know, these are big companies, big names. USA वगैरह is taken over, but German were the really they had a lot of control on industry, education wise, sciences, and a lot of things, and chemical industry. So इसकी जो क्या ये pharmaceutical chemicals बनाते थे वो जर्मन कंपनी, हम उसके एजेंट्स थे उस ज़माने में। पाकिस्तान में उस ज़माने में क्या, आज भी पूरी दुनिया में सबसे आसान काम तो एजेंसी लेना है ना, कि यार हम तुम्हारे एजेंट हैं, हमें दे दो, माल बिकेगा, उस पर खामोशी से बैठे बैठे कमीशन मिल जाएगी। सो वी डिड दैट। सो मैंने वो इंडेंटिंग का मैंने उनके साथ ट्रेनिंग करी, वो शागिर्दी बोलते हैं हमारे पास, तो मैंने वो ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर हमारे ताया ने पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इनिशियली 60s में फार्मास्यूटिकल, बिकॉज थ्रू केमिकल्स वो एक इंडस्ट्री आ जाती है, यू वांट टू आल्सो ऐड वैल्यू, तो वैल्यू एडिशन के लिए उन्होंने दे सेट अप अ फार्मास्यूटिकल यूनिट बैक इन द 60s। अगेन दिस इज back when there was hardly any competition. The fact that anybody who could speak English and had a telex machine, there was an advantage. So because of those things, there was a lot of first mover advantages. 60s and 70s के अंदर it was very easy to succeed, generally speaking, because if you had some contacts and you had a quarter of a brain and you were able to have exposure of anything abroad, all you had to do was replicate and or chandni. So we were lucky in that way, not to take away from anyone, but that was the time. You know, virgin land के अंदर ट्री लगा लिया तो क्या कमाल कर दिया, like obviously बिकेगा वो, you know, जहाँ पानी नहीं, मज़ा तो वहाँ आता है ना जहाँ 18,000 और लोग हैं और वहाँ पे माल बेचो, कंपटीशन is key. So we were my family has been amazing at being first movers, and the minute competition sets in, so because of the operational, their style of operation in my opinion was quite inefficient. So as soon as competition would kick in, that businesses would start dying, and therefore interest would be lost, and they would go into finding the next first move, because पैसा तो easy पैसा उसी में है ना, this is hard पैसा, मेहनत। It's not just mehnat, it's also not being able to deal with competition. So that was one of the styles of working initially. I mean, from all their strengths, I'm obviously only mentioning the weaknesses. Strengths ज़्यादा थी उनकी in the family. तो खैर anyway, so multiple businesses. Revlon was पहले pharmaceutical के unit करा, pharmaceutical की जो equipment and world है, and cosmetics and consumer goods ki, the equipment and the world is very similar. The manufacturing end, the selling is different. One is you're focusing on doctors, your primary end is convincing the doctor through either education or kharcha pani, whatever it is, to prescribe your medication, whereas consumer goods is out there to everybody and you're competing with the world. तो जो लोग बाहर बैठे होते हैं ना डॉक्टर की दुकान के, जी जो बात, तो देखिए वो भी जो होते हैं, मैंने वो भी करा है। फिर मैंने वो 5-6 साल, मुझे इंटरेस्ट था, चूँकि कॉस्मेटिक्स के काम में हमारे ताया इन्वॉल्व थे और वहाँ कंट्रोल था, फार्मास्यूटिकल में कोई देखता नहीं था, तो मुझे, और मैं था भी दवाई वाला, तो मैं पहले फार्मास्यूटिकल में घुसा। वो बाद में खैर ये हुआ कि वो फार्मास्यूटिकल वगैरह ये सब हमारे ताया के बिजनेस थे, हमारा कोई इसमें ताल्लुक़ नहीं था, तो ट्रेनिंग ही मेरी हो गई, अल्लाह का बहुत एहसान है। ये बाद में पता चला कि ताल्लुक़ नहीं था, शुरू में कुछ और कहा गया था, बट दैट्स इररेलेवेंट। Alhamdulillah, I ended up I worked in the cosmetic business as well with them, got a lot of exposure. Revlon एक ब्रांड था, अभी भी है, मगर उस ज़माने में फ्रेंचाइज का बिजनेस शुरू करा हमने फिर, तो परफ्यूम, कॉस्मेटिक, पैटर्न, ये अगेन दीज आर नेम्स यू हैवंट हर्ड, जर्मन ब्रांड्स थे। ब्लेंडामेड वाज अ टूथपेस्ट विच वी स्टार्टेड, टूथपेस्ट बनाना, शैम्पू बनाना, परफ्यूम बनाना, ये वो चीज़ें बनाना 70s से, मेरी पैदाइश 70 की है, तो उस ज़माने से
इन कामों में हम लगे हुए हैं। तो मैं तो पैदा ही इन चक्करों में हुआ हूँ, तो मैंने तो यही देखा है, फैक्ट्री जाते हैं तो अच्छी खुशबुएं आ रही हैं और अच्छे अच्छे काम अल्हम्दुलिल्लाह, लड़कियों को माल बेच रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। इट वॉज अ मोर फेस्टिव थिंग, टैल्कम पाउडर। सो और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें काफ़ी सक्सेस दी और उसमें पैसा कमाया बड़ों ने एंड एवरीथिंग। सो दैट वाज गुड एक्सपोजर। एंड देन फिर वहाँ से their interest shifted towards fragrances and perfumes, again higher margins as imports खुल गई पाकिस्तान में, competition आ गई। उस ज़माने में पाकिस्तान इंडस्ट्री was protected, import थी नहीं, आपको जो भी कुछ चाहिए अलाउड ही नहीं थी, इलीगल था। आप पाकिस्तान जैसे इंडिया में याद है एम्बेसडर कार, अगर तुम पुरानी फिल्में देखो तो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं, पर अलाउड नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो गए लोकल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में सब खुला खाता था, मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक, सिगरेट्स, इन सब चीज़ों में बैन था। तो कब खुला ये? I would say late 90s, 2000s. I don't know which government did it, but I think it was 90s when things started changing. Was it good or bad? I mean, of course, everything has both of its. Of course, it's देखो competition coming in, everything is good. The unfortunate thing is that there's never been long policies. There's no good and bad policy as long as it's लंबी. Short term doesn't work ना, ये knee jerk चीजें हुई। चलो ऐसा करते हैं, भी करते हैं, अरे अभी ये करते हैं, अभी थोड़े दिन के लिए खोल देते हैं, फिर कोई दूसरा बंदा आया, अभी इसको बंद कर दो, चूंकि मेरे खालू के बेटे का ये नहीं हो रहा। तो So that is kind of which might have messed up the country, और consistency नहीं है, long term vision नहीं है। 10 साल का प्लान बनाओ ना, 11 घंटे का नहीं। सही बात है। अभी ये मसला है, हम लोग को आदत क्या है, अभी क्रैक आ रहा है, टेप लगा, बंद कर, आगे चल, दो और बहुत सारे काम करने हैं। Instead of in the 60s, in the 50s, in the 40s, what made Pakistan thinkers, discussions, acceptance। आज तो आप अल्लाह रसूल, आर्मी, नेवी, डजंट मैटर व्हाट द टैबू वर्ड इज, यू कैन से समथिंग और 18 लोग आ जाएंगे पत्थर मारने। वो पाकिस्तान नहीं था। आर्ट था, कल्चर था, डांस था, पोइट्री थी, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस थी। लाहौर हैड रिच कल्चर। अबे कहाँ गया? अब तुम लोगों ने तो अनफॉर्चुनेटली हमने बर्बाद कर दिया पाकिस्तान आप लोगों के लिए, हम उसके लिए माजरत खा हैं। कसूर 100% हमारा है, किसी भी बच्चे का नहीं है। मगर अब ठीक है, आप लोग बड़ों को नहीं डांट सकते हैं, तो गलती तो सब बड़ों की है, बच्चों की तो है ही नहीं। मगर फ्यूचर तो आपके हाथ में है मियाँ, राइट। अब आप लोग आगे लेके बिस्मिल्लाह चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड कि जी हमने बहुत कुछ किया, बहुत बर्बादी की, जिसने जो करी, दैट्स डन, राइट, व्हाट्स डन इज डन। आई मीन ग्लोबल वार्मिंग भी आ ही गई, बिल्कुल हो गया ना, लेट्स डील विद व्हाट्स हैपेंड बट लर्न फ्रॉम 2030 का गोल सबके लिए है, लेकिन कि जी हमें डिकार्बनाइज करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है कि हम इंसान सब मिलकर रह सके। बुढ़े मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो जिंदा है ना, अभी तो सब इक्वल है। सो व्हाट would you see as, of course you've mentioned that you guys have been first movers, you guys have seen a lot of industries have been shifted in so many industries. Food भी करा मैंने बाद में, by the way, so so please do share about that and then I'm going to ask this question. So we had gotten to, so we did, so okay, so I'll try and summarize. आप हैरान होंगे, you won't believe this, apparently I talk a lot. So really? हाँ, मैंने सुना है, लोग मुझसे कहा हुआ है। So we did, I did the cosmetic bit, then वो cosmetic bit भी करा, फिर वो बंद भी हुआ। लाइन खुद पर्सनल भी निकाली मैंने अपनी तो उसके लिए मुझे अपना उसी, मैं आई एम पार्ट ऑफ अ सेटअप, और मोस्ट सेटअप के अंदर मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे माशाल्लाह चूँकि वालिद साहब और वालदा, इन सब के भाई बहन अच्छे खासे हैं, उन सब के बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब में आखिरी बच्चा मैं पैदा हुआ। तो इसका मतलब द यंगेस्ट, who the hell is going to listen to the young kid, right? And अमेरिकन स्कूल का गया हुआ, somebody who's willing to say, मगर आप तो गलत भी हो सकते हैं, टू 30-year-old मैन और डैड और एनीवन, जिसको सिखाए अम्मी ने गया है कि हाँ पूछ लो क्या गलती है, जैसे आप लोग स्कूल में सिखाते हैं। वो इट वॉज अ लिटिल like too soon, like वो वक्त उन लोगों के लिए, they weren't ready for it, ahead of their time. My mom, I was ahead of my time. Rehan right now is ahead of his time. I think he's from the year 9000.
But yeah, even I was a bit ahead of my time because of my mother's teaching. So due to that, we had some complications. Anyway, so after, besides this industry, and in 2007, I got lucky in 96, इश्क हो गया. अल्लाह का शुक्र, अकल इतनी थी कि किसी कनेडियन पासपोर्ट होल्डर से हुआ, तो अल्लाह ने मुझे वो ग्रीन पासपोर्ट का भी एक जो गिफ्ट है या व्हाटएवर इट इज़, मुझे एक दूसरा कलर का पासपोर्ट का अपॉर्चुनिटी दे दी. पता नहीं, वो आई गेस लोग तो उनको बहुत समझदार समझते हैं, बट शी डिड एंड अप मैरिंग मी, तो आई डोंट, द ज्यूरीज आउट ऑन दैट वन. अ वेरी केपेबल वुमन लेडी हु वाज, मतलब शी इज पाकिस्तानी, यू नो, वो होते हैं ना पेरेंट्स हु आर लाइक, अरे यार लेट्स गो टू कैनेडा एंड मेक अ लिविंग एंड यू नो इम्प्रूव आवर लाइव्स. वन ऑफ दोज फैमिलीज, हैदराबादी. Again, I'm from Delhi, Punjabi Saudageran. I didn't know what a Hyderabadi community is, the Hyderabad Dakkan India one. So she's from that community. Again, fantastic exposure I got to that. And she is, unlike me, Jahil. जैसे रेहान कहते हैं जाहिल, मैं भी उन्हीं का भाई हूँ. रेहान का आपने बैचलर्स पूरा किया था? हाई स्कूल डिप्लोमा, that's all. बैचलर पूरा नहीं किया था? अप्रेंटिस पूरा नहीं किया? रेहान कितने टाइम तक गए थे? So I did a year in the States. I did 3 months in Lahore, and I did about 8 months here. Well, I tried all that. वो फायदा क्या, क्रेडिट ट्रांसफर सब हुआ. I did all that मेहनत, but जब डिग्री होनी नहीं है एंड में, तो वो I didn't even get associate डिग्री लेके मैं क्या करता. Like I did want a bachelor's degree. I do believe डिग्री की वैल्यू है. I'm still not as sold as I was before, because it's a basic thing. There are some experiences that you get, a lot of things are taught. ये नहीं कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, मगर इस चीज़ की वैल्यू नहीं, मैं ये नहीं मानता. उसकी भी एक वैल्यू है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ. मगर खैर वो कभी नहीं हुआ. मैं ऐसा बना हुआ नहीं हूँ कि मुझे उससे कोई फ़र्क पड़े. मतलब नॉर्मली लोगों को एक थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है या चीज़ होती है कि हमें डिग्री, मुझे वो अल्लाह का शुक्र है, वो चूँकि बचपन से मुझे मेरी वालदा ने हमेशा मोहब्बत दी, तो मेरे अंदर वो तकलीफ़, वो मुश्किलें, वो डर आया ही नहीं जो लोगों के अंदर हम पैदा करते. ये देखिए, बचपन ही की सारी चीज़ होती है जब डर पैदा होता है. ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, डर डर. हमारी अम्मा ने हमेशा प्यार, एक तो उनकी आवाज़, जितना मैं लाउड हूँ उतनी उनकी आवाज़ धीमी थी, बहुत नरम आवाज़ में बात करती थी, बहुत केयरिंग, लविंग थी. सो वेरी वेल प्रोटेक्टेड ईगो एज अ चाइल्ड. Therefore, growing up with confidence, and 60-year-old men are confused, like, oh, how can this chachundar look at us eye to eye and not be scared when we, you know, their expectations of respect is different. हमारे पास respect ये होती है कि ये कर लो, और भैया हम अल्लाह के आगे, किसी के आगे हमसे होता नहीं, हमसे नहीं होता. But anyway, so we did then in 2007 I decided कि भाई मुझे भी कैनेडियन पासपोर्ट चाहिए. तो तब तक मैंने नहीं लिया था. तो 2007 मेरे भी बच्चे हो गए. मैंने भी बोला कि यार मैं अमेरिकन स्कूल गया था, तो ये एक्सपीरियंस जैसा मैं निकला हूँ, उस वक्त तो बेगम समझती थी बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने भी बोला डालो. तो हमारे सारे बच्चे ऐसे ही हैं, 2 बेटे 1 बेटी, वो भी अमेरिकन स्कूल गए. 2007 में मुझे ये ख्याल आया, एक तो पाकिस्तान के हालात भी कुछ हो रहे थे. मैंने अपने एक दोस्त के साथ, जिनका एक फ्रोज़न फूड का बिज़नेस था, ताज़ा फूड्स के नाम से, फ्रोज़न पराठा, शीरमाल बनाते थे. मैं उनके साथ स्क्वॉश खेलता था अमेरिकन स्कूल में. वो 2006 में कनाडा गए, उनको बड़ा पसंद आया. उन्होंने बोला मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए. हमने इनिशियली वो बिज़नेस में, आई बिकेम अ पार्टनर विथ हिम. फिर 2007 में बोला अभी ये भी जा रहा है, यू नो, साथ जाएंगे, मज़ा आएगा. वो अकेला मैं कोई चीज़, मैं तो हज अकेले नहीं गया, मैं कोई चीज़ अकेले नहीं करता, कि दोस्तों के साथ ही मज़ा आता है. आई एम ए पीपल्स पर्सन. सो 2007 मी एंड माई वाइफ वी थॉट अबाउट इट, वी डिसाइडेड, एंड देन सो माई फ्रेंड ऑल्सो मूव टू कैनेडा एंड आई ऑल्सो मूव टू कैनेडा. मैं तो इसलिए गया कि भाई मेरे भी हाथ में तो पासपोर्ट हो, मुझे ही साले वीज़े लेने पड़ते हैं. वो तो जहाँ जी चाहे, वो और बेगम और बच्चे जहाँ जी चाहे चले जाओ, मूसा भाई वीज़े लगाओ, ये करो, मुसीबत, हेटेड इट. सो आई वाज लाइक हाँ पासपोर्ट ले लेते हैं. एंड सो मूव टू कैनेडा, एंड दैट्स वेयर वो ताज़ा पराठा फ्रोजन डिड दैट, लिव्ड देयर फॉर 5 years. बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, फैंटास्टिक इट इज़. अगर जन्नत देखनी है भैया, कनाडा चले जाओ. फजर पे उठते हैं, इशा के बाद सोते हैं, आपका कोई नेबर भूखा ना हो की जिम्मेदारी वो लेते हैं, नरमी से बात करते हैं. ईमान हटा दो, अमाल मुसलमानों वाले.
So it was a very good exposure to see that wonderful, different kinds of people. My kids loved it. Then we moved back to Pakistan. 2012 passport aa gaya, to वापस आ गए. Was here, came back to the business. वो थोड़े business के थोड़े issues वगैरह, मुश्किल तो हुई भी थी, तो थोड़े से issues आए. Then about 3 years ago, because we were struggling a bit, and my wife is again she herself, when we came back in 2012, because she's a capable, padhi likhi English literature major, whatnot. So she joined Oxford University. She started working there, and then with eventually the Oxford की जो CEO थी, जिन्होंने I think 40-50, the one who basically founded Oxford, was there forever. She left Oxford and started her own publishing company. So my wife and 3 colleagues, 2 of other, these 3 women. Oh, that's another fantastic story. Like, you got to do these guys. These 3 incredible women. I mean, my wife के अलावा भी all these women are incredible too. They started this publishing company called Lightstone Publishing, which is actually the founders are women. Fantastic job, really giving everyone a run for their money. So they did that. Paid about 2-3 years ago. That was their focus. 2-3 years ago, थोड़े हालात ऐसे हुए कि even I was also struggling. कि my wife, we decided कि maybe it's best that the family exits Pakistan for now. My wife and the children. So everyone left for Canada, and तो मैं अभी तक फंसा हुआ तो नहीं हूँ, मगर यही हूँ. और तो वो लोग वहाँ हैं, अल्लाह का शुक्र. वो अपने प्लस बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, वो ग्रेजुएट करना है, वो अब उनका यूनिवर्सिटी वगैरह का टाइम है. सो दे डूइंग दैट ओवर देयर, एंड देन वील सी क्या होता है. तो फिल वक्त मैं यहाँ हूँ. और मगर हाँ, दैट्स माई समरी. So you're working in so many industries, and me continuing my question from earlier. You guys have had the first mover advantage in so many things. You growing up, having those conversations on the dinner table, and so much more that you indirectly learn from Correct. society around you. Whether it's family, whether it's your friends, whether it's whoever. हमेशा सीखते हैं. So how do you feel? And even after experiencing what the kids have been doing at Rehan School, and the tools we have in our phones, and the AI tools that you've just been learning about in the past 1 week only. So, endless opportunities बनेंगी ना अब. आप समझे, I was just reading this morning that Nvidia crossed Apple. No, Apple's like $2 trillion, man. There's no way. Nvidia crossed it. What? Right, so things are happening that we never thought of. Right? Subhanallah. That guy who you were thinking is पागल सा बंदा, कोई चाइनीज सा, उसने स्टीव जॉब को पीछे छोड़ दिया. मियाँ 90s में एप्पल, आपने तो वो दुनिया नहीं देखी भी जब एप्पल स्टीव जॉब छोड़ के गया था. बिफोर इवन स्टार्टेड नेक्स्ट एंड एप्पल वाज गोइंग डाउन. आई वाज अलाइव ड्यूरिंग दैट टाइम जब लोग एप्पल को गाली. आई एम एन एप्पल फैन बॉय बिकॉज अमेरिकन स्कूल में एप्पल था. मुझे तो 82 में आपके अब्बा को कंप्यूटर के चक्कर इसमें हुआ कि 1983 में हमारे स्कूल में एक समर कोर्स हुआ. उन्होंने एप्पल 2 पे कोर्स कराया. आई वेंट देयर, फेल इन लव विद कंप्यूटर्स. I said, so my dad bought me a computer. I had one. आपका cutie pie dad, when he came and saw, again he's a weirdo like me. He was also like, oh my god, I want this. He went to his dad. उनको ज़्यादा उनको कन्विंस करना पड़ा. आपके दादा भी कन्विंस हो जाते हैं, मगर वो मेहनत ज़्यादा लगती है. हाँ, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके अब्बा तो सेलमैन, उन्होंने इवेंचुअली कन्विंस हो गए. और फिर उससे दुनिया बदल गई, चूँकि वो जब टूल मिल गया हाथ में तो दिमाग खुल गया. और आप तो टूल आपने जो बच्चों के हाथ में दे रहे हो, आप तो 1000 रियान अल्लाह वाला बना रहे हो. सुभान अल्लाह. So I need an answer from you on, I mean, before I actually ask you that question, इतना कॉन्टेक्स्ट देने के बाद भी, कि जी मेरे अब्बा के जो कुछ टॉप मेंटोर्स हैं और जो बहुत सारी चीज़ें जो इनके घर में वो देखते थे तो उनको चाहत होती थी. और उसकी वजह से वो अब ये पर्सन आज हैं. इनकी बड़ी बहन, इनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा है. और he's been inspired by many, including myself and many, as I am. But he continues to inspire others. What he got from what he saw, he is for so many. अबे I'm inspired by you. तो ये तो एक normal process है. Right, it's a part. So what do you feel as an advantage that, let's say, your 3 children will be getting a part of? What are some things? क्योंकि हम लोग ये समझते हैं
in my personal opinion and what I feel is कि जी the next 10 years are very crucial for our society and overall globally. कि जी अब इन 10 सालों में, ये नहीं कि 10 साल के बाद कारोबार बंद हो जाएगा या कोई शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डायनामिक्स बहुत बदल रहे हैं. हाँ. और वाइल यस रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत रहेगी, इंडस्ट्रीज रहेंगी, लोग पैसे कमाएंगे, लोग झूठ बोलेंगे, कारोबार होगा, तो कारोबार देखो नहीं होगा. हाँ बिल्कुल सही. हम लोग अपने आप को अभी इस वक्त कौन सा आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? आपकी आइज में आजकल क्या दिख रहा है? भाई मुझे पर्सनली अच्छा, माइट बी ओनली फॉर दिस वीक, बट आपको दिख क्या रहा है? देखो मुझे तो लग रहा है एक रेवोल्यूशन दुनिया में आया हुआ है. बहुत कुछ वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ, इंक्लूडिंग फ़लस्तीन. Access to in its so historically it's always been easy to lie and manipulate, which is what people have done. Yes. That advantage is gone. बिल्कुल ऐसे ही है. So now information you can just check right now. अच्छा, and because of that, the lying hasn't gone because that's why there's fake news. आज बच्चा ये जो सामने साहब बैठे हुए, आप बैठे हुए, हर किसी को पता है यार वर्जन तो कोई भी हो सकता है, बातें तो 2 तरह की हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि सो आज सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिकॉज ऑफ ऑल दीज लाइज everyone is forced to think for themselves. At least they should. I mean, they're forced to. Yes. So because of this, the most amazing thing that's happened, शैतान अपना काम जो करे या करे, मेरा मौले का चार्म ये है, thinking has started and that you cannot stop. तुम रोक ही नहीं सकते thinker. एक्सेस अवेलेबल हो गई है, मोबाइल है तो थिंकिंग के यूट्यूब ये सब है, जहाँ पे एक यूट्यूबर कह रहा है दिस इज गुड, दूसरा यूट्यूबर कह रहा है दिस इज बैड, दोनों कह रहे हैं फैक्ट, तो यू लिटरली हैव टू सर खुजाओ एंड से ओ वाओ आई गॉट अ थिंक फॉर माई सेल्फ, डूड दिस इज मैजिक, इंस्टेड ऑफ अब्बू ने कहा था तो इसलिए मुझे करना है. दैट्स ओवर. So that is what I think is a game changer globally. That is very true. हम लोग बहुत अच्छा, आपने एक बीच में बात करी है बहुत अच्छी. बहुत परेशान होते हैं आजकल, मेरे अब्बा भी बहुत होते हैं, मैं भी बहुत होता हूँ, मैं होना तो नहीं चाहिए हालांकि, कि जी सब कुछ तो बदल जाएगा, हर चीज़ AI कर रही होगी, तो हमारे लिए क्या रहेगा. बट अगेन एंड ऑफ द डे बात आपने बहुत एक्यूरेट करी कि जी ऊपर वाले ने लिखा, भाई रोजी रोटी उसके हाथ में, हम कौन होते हैं सोचने वाले. आज से चलो 400 साल पहले, क्योंकि अब चीज़ें बहुत जल्दी शिफ्ट होती हैं. कोई नहीं सोच सकता था कि हम लोग ऑनलाइन बैठ के पैसे कमा सकते थे या अमेरिका बैठ के पाकिस्तान से पैसे कमा सकते थे. मेरा अब्बा 20 साल से कर रहे हैं तो, और आज भी लोग बिलीव नहीं करते. तो एवोल्यूशन. आपके स्कूल में 11 साल की बच्ची डॉलर कमा रही है, 12 साल का बच्चा महीने के $500 कमा रहा है. तो हम तो एक दूसरी दुनिया में बैठे हुए हैं. और अभी तो आपके वाले साहब ने कुछ नहीं किया, अभी तो कोई नहीं जानता, अभी तो इट्स नॉट इवन स्टार्टेड. सो द पोटेंशियल इज व्हाट्स एक्साइटिंग यू एंड मी ना, टू सी व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज़ इट्स गोना चेंज रियली फास्ट नाउ. सो वन थिंग, बिकॉज़ आई हैव बीन सो क्लोजली अटैच्ड विद हिम फॉर द पास्ट, सुभान अल्लाह, लकी यू, 11 साल. आई थिंक ये नहीं है कि जी काम अभी शुरू हुआ, काम तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, और सिर्फ फला का काम. और मैंने, क्योंकि अब मेरी हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ वही होता है क्योंकि मैंने देखा ही वही है, मैं 11 साल की उम्र से मैंने सीखा ही वही है. आपका तो खानदान की बीमारी है, आपकी दादी अल खिदमत फाउंडेशन, आपको अंदाजा नहीं है कि क्या है और कितना बड़ा काम है. 100%. आई थिंक माई डैड्स वर्क हैज बीन लार्जर दो. Of course, yeah. देखो इम्पैक्ट वाइज भी, और मेरे हिसाब से खैर अब अल्लाह हिसाब करेगा, बट सवाब वाइज भी डूड, अल खिदमत, भूखे को खाना खिला दो, किसी को कपड़ा दे दो, या श्योर यू कवरिंग द बेसिक. योर डूड, योर फादर इज नॉट इवन टीचिंग देम हाउ टू फिश, ही इज डूइंग मोर, ही इज टीचिंग देम हंगर क्या होती है and figure out and maybe fish, maybe invent, like he's creating geniuses. The potential of, he's opening the closed mindedness, he's saying खोल दो, because उसका अपना खुला हुआ, वो पागल है ना, उसे कह रहे सब पागल हो जाओ. That crazy is what changes the world. So not sheep. Right. So everyone thinking again and everyone thinking for themselves, what it's going to do is that you just said कि अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है ना, अभी तो काम बहुत कुछ करना है. Yes. That point will always stay the same. Correct. तो काम हर वक्त बहुत कुछ करना होगा, कभी भी एंड नहीं आएगा. So we have to enjoy the journey. We have to enjoy. अम्मी का फेवरेट वर्ड ठहराव चाहिए, वो मेरे अब्बा में तो है ही नहीं. मुझ में अब आ रहा है, चूंकि मैं बुढ़ा हूँ.
और थोड़ी फट भी गई, तो ठहराव आ गया. देखो, बीइंग लोनली एंड हैविंग, सो दीज आर, so living alone without the family has its challenges. Again, you have to look at the positive out of it. So I've been lucky enough because that then gives you a lot of time to reflect. अच्छा, मेरे अब्बा के पास अगर इतनी बैंक्रप्सीज ना होती तो वो ये भी नहीं होते, या इतना ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होते. अरे जिसको डंडा नहीं पड़ा, जो फेल नहीं हुआ, तो साले ने इसी का काम, उसको तो सेट है. एक सवाल करता हूँ, चलिए बहुत बोरिंग सा, बहुत कॉमन सा सवाल होगा या ऐसा होगा, लेकिन आपके बारे में कि जो डाउन्स होते हैं, क्या कौन कौन से डाउन्स होते हैं जो हम लोग सोसाइटी में एक्चुअली देखते हैं? क्योंकि आपकी उम्र है अच्छी खासी, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो जो आप लोग सिखा रहे हैं वो सीख रहा हूँ, है ना. आप जैसे लोगों के साथ बैठता हूँ, सोचता हूँ जो कहते हैं, लेकिन डाउन्स कौन कौन से आप देखते हैं और उसको कैसे छोटा मोटा टैकल कर सकते हैं? और ऊपर से बताइएगा, डिटेल में नहीं. डाउन, देखो, डाउन, अप एंड डाउन, सक्सेस एंड फेलियर, वो तो कुछ भी हो सकता है ना. यू कैन ट्राई टू अचीव समथिंग एंड फेल एट एनीथिंग, वेदर इट्स अ बिजनेस और व्हाटएवर इट इज. सो दोज फेलियर्स आर गुड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, स्पेशली द वंस यू आर मोस्ट इमोशनली अटैच्ड विद. और जो दिल टूटे, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम हो, चाहे वो तुम्हें डिग्री लेनी है या कारोबार करना है, जो भी करना है, जिसमें मेहनत, अनथक मेहनत लगा दो और फुस हो जाए और डिसअपॉइंट हो जाओ, दिल टूट गया ना, बर्बाद. अरे वो जो रोना है वही तो सीखना है, कि वो रो के उठना, ये है सीखना. जब तक तो जो ज़बरदस्ती चमाट पड़ रहे हैं उसमें तो गुस्सा आ रहा है. ज़बरदस्ती चमाट क्या होता है? जो किसी ऊपर वाले ने डांट डपट किसी की वजह से, सामने वाले ने तुम्हारे साथ बुरा करा इसलिए तुम हो गया, वो एक अलग है, वो तो जिंदगी. हाय मेरी बात कर, रोना धोना, यू कैन बी अ लूजर, बी दैट, और यू कैन एक्चुअली ट्राई एंड फेल. योर फादर हैज ट्राइड मेनी थिंग्स एंड फेल्ड, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर्स, not because someone did something, there was a combination of things, not anyone to blame, just yaar bad luck nahi hua. To be disappointed is important. To face failure, I think, is important, because once you go down, and especially I've been lucky enough to bottom out, I was like suicidal for 2 days, 2 minutes, so which was enough to bottom out. And depression से बेहतर कोई चीज नहीं सीखने के लिए, बिकॉज सैडनेस तुम्हें सिखाती है ना. अभी ये गालिब शालिब क्या, ये हंसी खुशी पंगे, नो, द कूल पीपल आर द वन जिनके दिल टूटे हुए, फट गई है. ऑसम. उस वक्त नहीं लगता, सुनते बहुत है, उस वक्त नहीं लगता, बट दैट्स अ रियलिटी, राइट? दिल टूटा हुआ है, वो है चांद पे, यू थिंक द गाय वाज पार्टीइंग, अबे दिल टूटा हुआ तो रो लेते. उनका असल तो जो ऑल दीज ग्रेट पीपल, ये इकबाल, उनका हुलिया और उनकी किस्से तो सुनो, मरे हुए, रोले हुए, बर्बाद हुए हुए, क्या रहे बंगी. हम लोग अक्सर ये भी सुनते हैं कि जो गालिब है या इकबाल हैं, वो जो दिल लोग शराब पीते थे, ये करते थे, इसलिए थोड़ी पीते होंगे कि जी वो पार्टी कर रहे थे इसलिए. अरे भैया, एक तो ये, अच्छा, ये शराब और ये सब चीज़ों की बातें, जैसे कि इस मुल्क में तो यही दैट इज़ द बिगेस्ट सब्जेक्ट, जो कि विच वाज इवन लाइक लीगल हियर अंटिल द 60s. इंडिया में भी है. एनीवेज, आई एम नॉट, दैट्स नॉट अ सब्जेक्ट टू गो टू, बट माय पॉइंट इज कि दीज थिंग्स, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, शराब, व्हाटएवर इट इज़, वो जो भी करते थे गालिब, दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर नमिंग एजेंट्स. इसीलिए मना करते हैं ना कि नहीं करो यार, दिमाग को नम कर रहे हैं, सुन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, रिमेन एक्टिव. सो सर्टन पीपल, ड्यू टू व्हाटएवर देयर रीजंस, चोज सर्टन थिंग्स. Whatever harm they did was to their own bodies. Yes. Clearly, it wasn't so horrible because the products they produced were still remarkable. So anybody who feeds you the BS कि अगर ये कर रहा है तो वो बंदा गू है, is wrong. Because spectacular work has been done. ये जो iPhone पड़े हुए, ये शराबी कबाबी नहीं बनाया है. तुम्हारे मुसलमानों ने सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं करा है लेटली. इनिशियली थे जब अकल थी, साइंस फाउंडेशन वही थी, वो सब बदल गया है बिकॉज किसी खालू को पावर चाहिए था और वो बता रहा था कि अल्लाह क्या कह रहा है, नॉट अल्लाह डायरेक्ट. तो वो तो एक गंद हो गया है, लाइक नॉट अ प्लेस टू गो. बट माई पॉइंट बीइंग, आई डोंट थिंक इट्स माई जॉब टू मेक एनी जजमेंट्स ऑन एनीथिंग पर्सनल. शराब पी के अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, इट्स अ नो ब्रेनर. बदतमीजी तो गलत है, उसने शराब पी भी हो या वो मौलाना साहब हो या गर्मी लगी हुई हो, कुछ भी हो सकता है भाई. इट इज इररेलेवेंट. बदतमीजी है, किस वजह से हो रही है, आई डोंट गिव अ डैम.
What's wrong is wrong. The action is what's wrong. We are अपने आप को तो एनालिसिस करते नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करते नहीं. कंट्रोल किस चीज पे? मेरी बॉडी, मेरी मर्जी. You are so experienced, you are this and that. What are some just places old, I'm that not are experienced. okay? You're old. So what has your age and your years taught you that people Hair could actually falls get? when you get older. That's Hair most falls. important thing. And hair grows from stuff where you don't want. I mean, that's the most. शुक्र है उन्होंने कान नाक पे रोक दिया. I'm gonna keep Alhamdulillah. on asking my question whether he talks or not. So my question is that what are some spaces that you feel okay? I mean, I don't want you. I mean, now not to be arrogant or anything, but just some places that you think that हाँ please दोनों टांगे पकड़ ले. That you feel that people can take benefit from you, that you have that specific kind of information, you have that kind of network, and in return, what might you want, or let's say not even what you want, right? If you just feel like, okay, I'm generous, this is what the information I have, the network I have, and भाई देखो कोई भी आदमी देखो ये तो अम्मी ही कहती थी हमेशा कि अच्छा थोड़ा सा मैं फंडो हूँ. I am a little fundo, so I literally do believe there is something which I'll tell you which is actually science and not so fluty. Our body is made 70-80% of water. I don't know, again वो Google आंटी AI बता देंगी कितना है. अच्छा, there is a very cool Japanese, I think वो था कि there's a guy, he did an experiment with water, and it's मैंने बल्कि वो even I've posted it. So what he did was different पानी के साथ उसने फिर वो माइक्रोस्कोप में जाके देखे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे. वो पानी के साथ हंसी खुशी बातें करी, कोई म्यूजिक सुनाया है, कोई ये करा है, कोई किसी के साथ गालियाँ दी, जैसे प्लांट्स के साथ नहीं कहते टॉक टू प्लांट्स. आई थिंक ही डिड इट विद वाटर from what I understand. And then he did different moods, positive, anger, music, ye wo. And then he analyzed the crystals. Dude, you Google it, and I think you should share it with this podcast. The positive energy jahan pe pyar, mohabbat, achhi baatein kari, those crystals formed in a very systematic I've way, done and this they were experiment. beautiful, right? And done it with rice and water. Oh, Have you done that? no, I haven't. But you see, You've seen it, na? but you see, when you understand the science, so this is science fact, This correct? is scientific facts, and aura matters, energy And- matters. Right? हम तो हैं ही मोस्टली वाटर, तो इसीलिए एनर्जी. वाईफाई है ना यहाँ पे, कोई झूठ बोल रहे हैं हम? नहीं है वाईफाई, नजर आ रहा है नहीं, इसका मतलब है नहीं है. Positive and negative energy exists. And my mother's focus was just on one thing. Focus on the positive, try to ignore the negative. हमारे अंदर भी आएगा, गुस्सा भी आएगा. इसीलिए तो रोजे रखवाते हैं कि भैया कुछ. So again, these are a little Urdu words. No, nafs it's pe not. nafs pe kabu. But nafs, that is what, it's all about nafs pe kabu. Himmat, gussa, bughz, greed, and all normal. Of course, अगर इंसान हो तो ये होगा. गुस्सा भी आएगा, तंग भी आओगे, थक भी जाओगे, ओवर भी अनफेयर भी हो जाओगे, अपने बच्चों के साथ भी नाइंसाफी करोगे, दूसरे के साथ भी करोगे. अबे तेरा काम है गलती करना नहीं, गलती करके जितने जल्दी तदारुख सुधारना. द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड कुत्ते का बच्चा इज वन. A man says, oops, made a mistake, I'm open to reasoning, you are right, I was upset, I apologize. And कुत्ते का बच्चा, अमिताभ बच्चन, कह दिया, so कह दिया. Sorry, that was from a movie. I watch a lot of movies. One thing I encourage, dude, जितनी फिल्में देख सकते हो देखो, दिमाग खुलता है. चलें. Again, but your point is, Do I ever have a point? My point is, positive energy is the focus. The focus for me is positive. मैं जो तो वो जन्नत ही जा रहा है ना. And for me, it's an easy way. No matter what you believe, atheist or not, if you focus on positive energy, how can you go wrong? मतलब ये मुझे समझा दो. one way or another, something good. If Has to happen. If to It this, has to. if to Mother Nature, you put out good energy, you'll get good, right? No, you will not get good. You will get danda in your butt is what you will get. But it doesn't भाई matter good उधर because मिले, करना यहाँ तो मिले, good है. good तो मिलेगा ना. Good आखिर में good मिल जाएगा. गुड बैड नहीं हो सकता, मैं ये जानता हूँ. सही. मैं ये जानता हूँ. तो अगर कोई कह रहा है कि इसमें तुम्हारा नुकसान है, नहीं करो, तो सुनो, बी केयरफुल, डोंट बी एन इडियट. बट हाउ कैन गुड नॉट बी गुड? So this is my, and bad, गुस्सा तो गुस्सा, it's negative energy.
You can use it, channel it, try to make it positive. Jealousy, negative energy. I mean, you know the negative energies. There's a million of them. Getting tired also. Any negative energy coming in, anything जिससे हंसी की जगह ये आ रहा है, is not good. उसको निकालना है. सिस्टम में अच्छा डालना है ना. Hare Rama, Hare Krishna. I mean, I totally believe it. I mean, which is why even my religious beliefs are, I mean, yes, fundo, but a little different, a little more open-minded than most. Right. No, of course, everyone's It's an individual. allowed their individual. हमारी अम्मा कहती थी ना, सबको अपनी आग में खुद जलना है. तो बेटा तेरी मर्जी तू जान. बिल्कुल सही बात. इंडिविजुअलिटी अपनी जगह है और अपना अपना है. अपना देख लो और दूसरों का जितना बुरा करोगे उतना ही अपने साथ बुरा होगा. एनर्जी मैटर्स. हमने ये चावल का एक्सपेरिमेंट किया था कि 3 वो बनाए थे जार्स. उस पर एक पे लिख दिया था आई हेट यू, एक पे था आई लव यू, एक को इग्नोर कर दिया था, एक पे कुछ नहीं था. एवरी वन ऑफ देम वर केप्ट इन डिफरेंट रूम्स इन डार्कनेस. आफ्टर अ वीक आई हेट यू वाला सड़ चुका था, बदबू थी उसमें, वो काला हो चुका था. आई लव यू वाला वैसे का वैसा था, उसके वाटर क्रिस्टल्स बेहतर हो चुके थे. हमने खुद देखा नहीं था, बट दैट आई मीन दिख रहा है ना, गंदगी नहीं गई. हाँ सही. एंड इग्नोर वाला भी सड़ चुका था. इतना ज़्यादा नहीं बट सड़ चुका था. बट इट वॉज अनबेरेबल. स्मेल वॉज अनबेरेबल. भैया तो हमारा भी यही हाल है. तो इग्नोर जिसको कर दोगे वो भी सड़ेगा. बिल्कुल. जिसको गुस्सा, इग्नोर इज क्रूअल्टी. देखो, इग्नोर इसके काल खोटी में बंद करके छोड़ दिया ना कि जा तू मरता है तो मर. दैट इज एज बैड. Human beings, we are creatures hunger for love. My hunger is for nothing, is for connectivity and love. That's all we want. अम्मी से भी, भाई से भी, खालू से भी, recognition वगैरह, इसको जो भी, even the ego at the end of the day, it's all about love, it's all about self-care. End में तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर, वो सबके दिल में है. Because the love, वो है ना, it's, I believe it's a Christian thing, God is love, Jesus loves you, all of that. Dude, all true. It is. वो भी सजाद, वो जवाद अहमद का गाना है, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, मैं मौला मस्कल अंदर. Rock solid 100%. It's all about creating positive energy. You call it God, call it what. Pick your label. Positivity is the key. Has to be. And I'm very comfortable calling, say, giving this to the negative people, because डर किसके बाप सा है. लिहाज अपनी जगह. Negative is negative. It is wrong. लिहाज करो. मगर वो सही है ना. यहाँ पे तो more people are joining the band and मेरे ख्याल से हम एक चीज़ में रह जाते हैं, which is where I think what we struggle with, and the word is waswasa. I think hearsay is a very scary thing, is a very destructive thing. It's very important to make your own assessment and decisions and understand the difference between hearsay and direct from the horse's mouth. And always, if I hear something about Saad, and in sitting in my room I make an opinion, किसी ने बोला साद ने किसी लड़की को थप्पड़ मारा, and if I make an opinion in my head, साद तो कमीना आदमी, and then I start ignoring you without knowing anything, only because मुझे किसी ने राह चलते किसी ने बताया था, I'm at fault. What I should do is, if I'm changing my opinion towards you, I must verify. And in the end, अगर साद ने थप्पड़ भी मारा तो बाद में पता चला कि नहीं, वो एक्चुअली थप्पड़ नहीं मारा था, वो खुदकुशी करने जा रही थी. She had lost it, so I had to slap her to calm her down. Totally justified, which anybody else would have done. So what? No. वो so important to not make judgment. वो उस पे छोड़ो ना. And if you want to make an assessment, to do it direct, man. I don't believe, because I know everyone can be wrong and so can I. So I just try to make sure that I'm making the right thing which pleases पहले मेरा मालिक and is beneficial for me. That is my objective. मुझे जन्नत जाना है. मतलब जल्दी नहीं भेजो. I would like to live at least till Allah Malik 80s and then die in peace, hopefully. But एंड में तो जन्नत जाने तक अम्मी के साथ पार्टी करनी है ना. वो वहाँ वेट कर रही है यार. बात बिल्कुल सही है. पर वेट तो नहीं करनी. एक बात है तो मिलेंगे. हाँ,
मैं सवाल कुछ किया था, जवाब कुछ और दे दिया। भैया वो तो भैया आपको अब मूसा का ट्रेलर मिल रहा है, आपको शौक आ रहा था ना, आपको तो ट्रेलर मिला है। अभी तो ये सोच मेरे बीवी बच्चों के लिए सोच क्या हाल होगा उनका। आप 30 साल तक अभी है ना, तो 30 साल में अल्लाह अगर पता है घर पहुंच जाए। आपने खुद ही कह दिया 80 साल, अगर आपके विल यही है 80 साल तक तो ऊपर वाला वो हो सकता है विल पे ही रहे। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कारोबारी हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो कारोबार आपसे आपको फायदा उठाना चाह रहे हैं, दोस्ती पैसों के लिए करनी है, उनका बारे में पूछो। नहीं पैसा नहीं, चलो उनको इम्पैक्ट के लिए कुछ भी करना है यार, फायदा हो जाए। I can make no one any money. No. I'm not. What kind of resources could you provide? I mean, is there a network that is something that you might be helpful with? Is there some technical knowledge that you have? So, like you said ना, रोटी कपड़ा और मकान, मेरे अभी इन तीनों के जरा मसले हुए हैं। तो मैं पहले अपना रोटी कपड़ा मकान सेट कर लूँ भैया, फिर दूसरों की पहले अपना संभाल ले। बस मुझे यही जवाब चाहिए था, इसलिए नहीं मैं सवाल कर रहा था, मुझे पता था जवाब नहीं मिलेगा। But no, that's so true कि जब तक अपना रोटी कपड़ा मकान लोग सेट नहीं करेंगे द आइडियल वे दे वांट, राइट, जितनी आपकी नीड है, तो उससे पहले किसी और के पास जाने के सवाल पूछने का फायदा नहीं है। It's not possible to do. You got to take care of your own home first. So इतने सारे जो लोग स्टार्टअप्स करते हैं, हालांकि माय पॉडकास्ट इज कॉल्ड द स्टार्टअप पॉडकास्ट, जिन लोगों को स्टार्टअप करते हुए देखते हैं और उनकी घर की नीड्स पूरी नहीं हो चुकी होती, वो अपने घर वालों से लड़ के आए हुए होते हैं एंड वो लोग घर में भूखे हैं। आप पहले अपने घर की नीड्स पूरी करो। देखो भूख, सो अगेन द वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड भूखा, सो भूख एक्चुअल फूड, देखो भूख तो सारी खत्म नहीं होती। मैं तो एक्चुअल फूड की बात कर रहा हूँ कि घर की दैट्स अनफेयर। आप अपने जो आपके एटलीस्ट घर की नीड है 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, फर्स्ट फूड ऑन द टेबल, मगर यू नीड टू हैव फूड ऑन द टेबल, यू नीड टू हैव अ रूफ ऑन योर हेड. That's minimum. Those are your basic and I mean hopefully health as well, inshallah. But those are your absolute prime basic needs. Man used to go out and hunt, dude. So, and there was gatherers and hunters. Yes. So this is not something we are discovering. This is existence. You got to do this. मगर मैं ये कह रहा था कि fighting realities, fighting the social reality or government reality, whatever reality we live in, fighting that, I mean, up to some, you can fight it when you feel okay, अब मैं actually कुछ impact ला सकता हूँ। अगर शुरू से ही let's say एक बंदा है जिसने अभी कोई यूनिवर्सिटी का फ्रेश ग्रेड है, सही, उसकी कोई नेटवर्क नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, नहीं। और वो जाके सीएम हाउस के बाहर जाके कैसे नहीं, ऐसा नहीं पहचान, यूनिवर्सिटी गया, that means dude if the guy lived and graduated तो नेटवर्क भी बन गया और सब कुछ हो गया। मैं कह रहा हूँ मगर वो जाके सिर्फ उसका काम यही है कि वो सीएम हाउस की बाहर जाके सिर्फ ज्यादती के लिए लड़ता रहे, वो अपना सेटिस्फाई कर रहे हैं यार, वो उनके अपने देखो तो बिकॉज what is it, what they are suffering, there is some gap in there which they're feeling and doing this activity makes them feel good कि I have a purpose, because they lost purpose, right? In my opinion, the same way the 8-year-old thinks I identify as a cat, जो अमेरिका में ये भी हो रहा है, 13-year-old boys, girls, whatever, they're identifying as men, whatever. 8 साल के बच्चे जेंडर चूज कर सकते हैं ना. So this whole gender can be this. So what is it? There is an incredible guy who ran for president and then they lost. He's a Hindu. His name is Vivek Ramaswamy. जब ट्रम्प रन कर रहा था, इससे पहले before the thing he was running, उसके लेक्चर्स और चीजें सुनो, वो बातें सारी बेहतरीन और मुसलमानों वाली करता है, रिलीजियस भी है, उसका रिलीजन दूसरा है मगर वो मौला एक ही है जिसकी वो बातें भी कर रहा है. एंड सो ही इज ऑल्सो समबडी, इफ देयर इज अ पॉडकास्ट दैट आई सजेस्ट यू गाइस ऐड, लाइक दैट्स विवेक. ही इज आई डोंट नो हिम. He's a kid, 30-year-old, wanted to run for president as a bill. अरे totally you guys should follow him because वो तो उसने तो वो कर लिया ना, बिलियन जो तुम सबको चाहिए, पैसा वो भी उसने कर लिया. उसने पैसा कमा लिया, $1 billion. He's a billionaire in the States. His wife is a doctor. Both Indians, young kiddos. उसके बच्चे 2 साल 1 साल के. So 30-year-old and ठीक है, $30 billion नहीं है, $1.5 billion बहुत है ना. हमारा काम चल जाएगा, अल्लाह का शुक्र, हम घर भी ले लेंगे, गाड़ी, हमारा सब काम हो जाए. तो उसके बाद 1-2 बिलियन होगा, मुझे नहीं पता, उसने मेरे को बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजा, मगर मेरे को ये पता है बिलियनर है और सेठ आदमी, सॉलिड बंदा है. उसको बुला के पूछ, मैं बेकार हूं. The religion doesn't matter. These people, if this guy can do it, it's all gonna happen. इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी होगा,
तुम्हारा वो बंदा जो बाहर जाके अभी तो सर्च कर रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा तो वो जाके वो साइन लेके खड़ा हुआ है, दैट्स आल्सो एफर्ट। जरूरी भी है, जरूरी भी है। हाँ। मगर भाई ख्वाब देखो, हर किसी के अपने ख्वाब। मेरे पास तो इतना डेटा है ही नहीं, टेराबाइट्स टू फिगर इट आउट। एक बंदे का यू कैन फिगर आउट अ जर्नी। एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी, आई एम ऑन माइन। पता नहीं कितनी टेराबाइट्स ऑफ डेटा उसने भर दिए हैं ऑफ रिकॉर्डिंग माई लाइफ। मैं तो पोस्ट ही थोड़ी सी करता हूँ, वो इतनी सी डेटा होती है। वो कहीं तो पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ एक्चुअल चीज़ें जो मुझे याद में नहीं, जब मैं इट्स ऑल बीइंग रिकॉर्डेड। दैट्स अ रियल जर्नी, दैट्स ट्रू विच एग्जिस्ट फॉर एवरीवन। द किड इन अफ्रीका, द 6-year-old हु गोज करके बातें करता है जो हमें और तुम्हें समझ में नहीं आती। भूख उसको भी लगती है, अम्मा उसकी भी है, उसका खालू भी आगे करके डांटता है। आई डोंट नो देयर लाइफ स्टोरी, दे ऑल्सो हैव अ जर्नी, दे ऑल्सो हैव ड्रीम्स। वो भी घर बना लेते हैं। उनमें मोबाइल सबके हाथ में आ गए, AI उसके हाथ में आ गए, अपॉर्चुनिटी उसके लिए भी खुल गई है जंगल में। दुनिया इतनी सी हो गई है मेरा भाई, कंपटीशन भी उतना ही है। इसलिए इसका मतलब है सिर्फ चाइना में नहीं, अफ्रीका के किसी उस शहर में भी बैठा। So Africa, by the way, they are very similar to us. Oppressed, a handful of people trying to control the people because of diamond mining. यहाँ पे whatever the hell, I don't know what gold we are selling, but for whatever reason, yeah, it's a land we just want to control, oppress. Same. Colonialism. Musa bhai is an amazing person. He is very well connected. And जो कुछ सवाल हो, आप LinkedIn चलाते हैं? Facebook चलाते हैं, वो भी like friend request not gonna accept, not gonna answer. Request भी check नहीं करते हैं? I mean, I do only from friends. I mean, because I get randos, which I'll probably get now too, and I'm going to ignore them because I don't know you, dude. I'm not trying to change. Of course, I would like to help everybody, भैया. नहीं, आपने आपको चेंज नहीं करे। मैं कह रहा हूँ कोई आपसे कोई गाइडेंस लेना चाह रहा है तो आप कांटेक्ट करें। चलो, इनको how can a guide, मुझे ये समझा दे, because it's a great question, because this is stupidity. जरा ऐसा करें, मैसेज करके गाइड करते हैं, what kind of stupidity is? So it's not possible. Guidance तो हो ही नहीं सकती unless you're face to face. काम हो किसी को आपसे, अब समझाओ तो। It's BS, right? Is what I'm to tell you. This is just BS. क्या काम होगा? How can I make a difference? Somebody who I don't know, rando. Not possible, right? It's just a BS way of making a connection, nothing more. Not interested because I have enough friends. Thank you. तो मूसा भाई से आप मुझे कोई भी दोस्ती नहीं करेगा? नहीं, but I'm friendly. But I have a lot of friends and I love you all. But cannot, जितना बड़ा दिल इन सबका है, मेरा नाम मूसा है। मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के प्रॉफिट थे, मैं यहूदियों का बाप हूँ, मूसा हूँ। So heart भी मेरा वैसा ही है. It's a little very selfish and I think for myself, and I first have to save myself before I save anyone else. So right now I'm working on me. But I'm here to help anybody I can do. Like, I'm a nice guy, but not here for randos. Thanks for watching. I hope you watched the next podcast. This was Musa bhai, and I hope that ये गंजी साइड से काम तो नहीं है, तो हो सकता है कि अपना ही पॉडकास्ट शुरू कर लें। कुछ बहुत अच्छे बंदे। आमीन आमीन, वो जो भी कह रहा है आमीन। ये बच्चा को अल्लाह ताला पर सक्सेस दे दे, आमीन। Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.